Can everybody listen me now? Yes, sir. Uh, Good afternoon. Yes, sir, you are welcome, audible. welcome, Professor Singh. This is our utmost pleasure to welcome you in the very last program or online lecture of our third quarter of ISE of this year. And we are very happy to have you with us to share your experiences and your expertise on the IPR and related issues. Singh is a biotechnologist by heart, and biotechnology is a subject that has a very, very close connection with IPR. And our nation has got some very good dividends on knowing the facts of IPR and some getting some patent back to India. Some of them are from Varanasi also, from Plant Pathology Department of Indian Agricultural Institute of Sciences, Varanasi. Uh, I would like to bring it to your kind attention, Professor Singh, that we are having this Institute Innovation Council in our college for last 3 years, and for the last 2 years we have got very good ranking as far as star rankings are concerned. It was 3 on the first year and 3.5 on the next year, and it was as compared to and also universities, some of the central universities also, including my parent organization, Varanasi Hindu, Varanasi ke BHU Varanasi. Uh, this has been possible. This has become possible because our teachers have been very interested in doing things, and our students, which belong primarily from rural areas, they have got the capability. Dr. Singh, you must have also been from rural areas, rural. Yes, yes, You have I know. started your career from. It was very useful for us to start in the rural areas, and now we are hoping to get some more star rankings, more good star rankings next year, and hopefully your lecture will be of immense value for us because students are not exposed to such issues like IPR. Hmm. And I would like to request you to, I I would like to request you to use bilingual mode, including Hindi also, because so that the student may be able to understand the things possibly. Our Prime Minister has a dream of making India or including India in the five topmost countries in innovation, and such meetings will be helpful for us also to contribute at least in some point 0.00 or 0.01%, and this will be we will be having very good experience with you also. Welcome, Professor Singh, and yeah, hopefully you might be having some slides also, so Yeah. you can start with your presentation, and thank you very much. So मैं जो बात कर रहा था कि प्रॉपर्टी क्रिएटेड विद द इंटेलेक्चुअल क्रिएशन ऑफ माइंड इज, यानी जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन है, इंसान का दिमाग कोई नई चीज सोचता है, करता है, उसकी आईपी प्रोटेक्ट की जा सकती है। ये सिंपलेस्ट डिफिनीशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की। लीगल डिफिनीशन है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और पेटेंट की, कि पेटेंट इज ए लीगल मोनोपोली ग्रांटेड टू ए ओनर ऑफ ए न्यू इन्वेंशन दैट इज कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल यूज for a specific period of time. In most of the countries of the world, this time is 20 years period, meaning thereby if you
file a patent today and you get a filing number immediately, your rights will continue for another 20 years. And that is always from the date of filing your application. So, दो तीन मुख्य बातें हैं जो मैं आपको अभी यहाँ बताऊंगा। लीगल राइट्स आपको मिल जाते हैं जो न्यू इन्वेंशन जो हमारा करता है उसके लिए, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कई विधाएं हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट खाली पेटेंट नहीं होता। ज्यादातर जगहों पे जब भी मैं जाता हूँ लोगों को एक कंफ्यूजन होता है आईपी माने पेटेंट। ऐसा नहीं है, पेटेंट कई तरह के होते हैं। और इस बार डायग्राम में आप देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बताया गया है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से पेटेंट जो है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का एक हिस्सा। इसके अलावा एग्रीकल्चर में अगर आपकी प्लांट वैरायटी है तो उसका भी प्रोटेक्शन प्लांट वैरायटी एंड प्रोटेक्शन एक्ट में होता है। अभी स्लाइड शेयर हो रही क्या? Viewers, are you able to see the slide now? ये स्लाइडें दिख रही हैं क्या? जी सर। अभी रुकिए, इसी पे मैं थोड़ा बात कर लूं तब आगे बढ़ाइएगा। मैं जब कहूं कि नेक्स्ट तो नेक्स्ट करिए, ठीक है? यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे मैंने बोला पहला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं होता, इतनी सारी ब्रांचेस हैं। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट, एंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में ट्रेडमार्क एंड जीआई है। और दूसरा जो देखेंगे आप पेटेंट्स, ट्रेड सीक्रेट, प्लांट वैरायटी, इंटीग्रेटेड सर्किल एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन। जो हमारे कंप्यूटर साइंस के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं जो सर्किट्स बनाते हैं उनका भी होता है। इंडस्ट्रियल डिजाइन बनाएंगे उनका भी होगा। एग्रीकल्चर साइंस से है, लाइफ साइंस से है, कोई वैरायटी डेवलप करते हैं तो उसका प्लांट वैरायटी एंड प्रोटेक्शन एक्ट में भारत सरकार में पेटेंट होता है। ट्रेड सीक्रेट की भी प्रोविजन आज की डेट में रखे गए हैं। और पेटेंट तो हो गई, दुनिया के 220 से अधिक देशों में पेटेंट के ऑफिसेज हैं। पेटेंट कई तरह के होते हैं, जैसे इंडिया का इंडिया पेटेंट ऑफिस है। इसे मैं अभी चर्चा करूंगा आगे कि कौन कौन से पेटेंट ऑफिस। पेटेंट क्यों किया जाए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पेटेंट करने के पीछे जो मंशा ये है कि जो भी वैज्ञानिक, जो भी लाभार्थी, शोभार्थी, जो भी शोध कर, चाहे वो टीचर है या स्टूडेंट है, उसे उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की कौन कौन सी मिनिस्ट्री गवर्न करती हैं इनके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क आर रजिस्टर्ड बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स ऑफ इंडिया व्हिच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी इसको करती है। कॉपीराइट जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को गवर्न करता है। लेआउट डिजाइन इंटीग्रेटेड सर्किल को मिनिस्ट्री ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करती है। और प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ वैरायटी एंड फार्मर्स राइट को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एडमिनिस्टर करती है। तो मित्रों ये सारी मिनिस्ट्री सब एक साथ मिल करके आईपी को रेगुलेट करती है अपने देश में। भारतवर्ष में जो आईपी लॉ बना वो बहुत देर में बना, 1970 में। उसका भी जिक्र मैं करूंगा विस्तार पूर्वक। लेकिन अगर आप दुनिया के और देशों को देखोगे यू विल फाइंड दैट द आईपी लॉ वाज देयर फॉर मोर देन 50 इयर्स अगो। हम यहाँ 150 से 200 साल पहले अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में, इस तरह के देशों में काफी पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लॉ बने थे, प्रोटेक्ट शुरू कर दिए। लेकिन भारतवर्ष में 1970 में लॉ बनाया गया। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। नेक्स्ट। अब आप देखिए मैंने जैसे जिक्र किया पेटेंट लॉ जो बना भारतवर्ष के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास हुआ 1970 में। समय समय पर इस पे अमेंडमेंट करते गए। 99 में, 2005 में। डिजाइन का जो एक्ट पास हुआ 2000 में। ट्रेडमार्क का जो एक्ट पास हुआ 1999 में। कॉपीराइट जो है वो 1957 में। लेआउट डिजाइन इंटीग्रेटेड सर्किल 2000 में।
प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, जिसको मैं कह रहा था, ये 1872, जिसको आप कहते हैं कि आप कोई जो नावल काम किए हैं आप नहीं चाहते कि किसी को बताएं, इसका सबसे सुंदर उदाहरण ट्रेड सीक्रेट्स हैं। और आज की डेट में आप कोको कोला कंपनी है ना, वो एक ड्रिंक बनाती कोको, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ कंपनी के ओनर को पता है। और वो दुनिया के जिन देशों में इसका प्रोडक्शन करते हैं इनके लोग जानते हैं और किसी को नहीं पता। और सबसे लेटेस्ट में भारतवर्ष में 2001 में प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी इन फार्मर्स राइट एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया। तो ये देखिए कि हम काफी, अगर आप एडवांस नेशन से कंपेयर करें तो बहुत पीछे हैं। और मैं अभी कुछ उदाहरण देकर दिखाऊंगा आपको, तो आपको स्वयं लगेगा कि दुनिया के तमाम देशों से बहुत पीछे चल रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब यदि आप देखें कि पेटेंट इंफॉर्मेशन कितनी है, करीब करीब 50 मिलियन पेटेंट डॉक्यूमेंट गूगल वर्ल्ड पे उपलब्ध हैं। 50 मिलियन, विच इज ए ह्यूज नंबर, वेरी ह्यूज नंबर। एंड अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन पेटेंट आर एडेड एवरी ईयर from different part of the world, and technical information revealed in the patent offices, they are never published in the form of research paper or review article or books. So ज्यादातर जो है, जो एडवांस कंट्रीज द वर्ल्ड है, वो अपने इनोवेशन को पेटेंट करते हैं, न कि वो रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, रिव्यू आर्टिकल पब्लिश करते हैं बुक में, ताकि उनकी टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करें, उसकी लाइसेंसिंग करें। और लाइसेंस फी जो है वो इन्वेंटर को भी मिलती है और जिस संस्था से आप पेटेंट को करते हैं उन्हें भी मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट वन। अब आप यहाँ देखिए, ये पुराने आंकड़े हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए भी दिखाना चाहता हूँ कि चीन जनसंख्या में तो सबसे आगे है ही, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, पेटेंट फाइलिंग में, पेटेंट अवार्ड में, टेक ट्रांसफर में भी दुनिया में नंबर 1 है। ये आंकड़े पुराने हैं, आप नए आंकड़ों पे भी नजर डाल सकते हैं, लेकिन इन आंकड़ों को खोजने में काफी वक्त लगा। ऐसा नहीं कि गूगल पे डालो और देखो कि 2021 में चाइना ने कितने पेटेंट किए तो मिल जाए। तो 5,60,181 पेटेंट चीन ने फाइल किया था 2012 में, और भारतवर्ष में उसकी तुलना में 1,820 पेटेंट फाइल किए। अब आप देखिए, तुलनात्मक अगर आप अध्ययन करेंगे तो भारतवर्ष बहुत पीछे है और चाइना दुनिया में नंबर 1 है। अमेरिका को भी पीछे छोड़ गया है, अमेरिका जो है 2 नंबर पर है। तो ये सब आंकड़े यदि आप गूगल पे बैठ करके खोजते हैं तो मिलेंगे गूगल वर्ल्ड में, संज्ञान में लाने के लिए कि चीन काफी आगे पेटेंट में भी है। नेक्स्ट वन प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने एक चित्र इसलिए जानबूझ के बनाया, ज्ञानपुर भी रूरल एरिया में आता है, मैं भी रूरल एरिया से आता हूँ, प्रतापगढ़ से। ये ज्यादा आसान है बच्चों को समझाना कि आईपी प्रोटेक्ट क्यों करें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को मैं कहता हूं कि बिजनेस है, दिस इज ए बिजनेस। ओके, मॉडल बनाए, यदि आप कोई घर खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी बाय करते हैं, उसकी रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो उनमें आप 5 काम कर सकते हैं। पहला कि उसके अंदर रह सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उसको किराए पर दे सकते हैं, उसको मॉडगेज कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं बैंक से, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं, उसको गिरा सकते हैं। ये फायदे हैं यदि आप आईपी प्रोटेक्ट करते हैं अपने इन्वेंशन का। अन्यथा यदि किया और किराए के मकान में रहते हो तो सिर्फ उसमें रह सकते हो, ये आने वाली 4 प्रक्रियाएं आप तय नहीं कर सकते। आप बताइए, क्या किराए के मकान को आप बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। ना उसको किराए पर दे सकते, ना उसको मॉर्गेज करके बैंक से लोन ले सकते हैं, और नहीं गिरा सकते हैं। इसलिए आपके संज्ञान में ये चीजें आनी चाहिए कि जैसे आप घर खरीदते हो, जमीन खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, आपको उसके पेपर्स मिलते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ऐसे जब आप अपने इनोवेशन को पेटेंट करते हो
तो इंडियन पेटेंट चाहे विदेश का हो, आपको पेटेंट एप्लीकेशन ग्रांट करके नंबर अलॉट करता है और उसमें आपको दुनिया में एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। यस, आई एम द ओनर ऑफ दिस इन्वेंशन। इफ यू रिमेंबर द definition of the patent, I said patent is a legal monopoly granted to the owner of the invention. So you have been the owner of your invention and therefore you are the only person on earth who has every right to sell it to industry for commercialization. तो मित्रों जो है इसी तरह से अब एक सबसे सुंदर उदाहरण मैंने ये सोचा था कि मैं अपने देश का ही उदाहरण दूंगा, जिसको देख के हमारे बच्चे और हमारे अध्यापक, अब ये मतलब नहीं कि आपको नौकरी मिल गई तो आप खाली बच्चों को पढ़ाइए और बच्चे भी आपकी तरह लेक्चरर और रीडर बनने का प्रयास करें, उनको आप तरह तरह की बातें बताइए कि आप अपने उद्यमी बन सकते हैं। और जब ये हमें टाइटल दी गई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड आईपी मैनेजमेंट फॉर स्टार्टअप, तो मुझे बहुत सुंदर लगा। हम जो वहाँ के प्राचार्य हैं या इस सेल के इंचार्ज जो है, ये लोग अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सारे सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे स्टार्टअप लगाएं। किरण मजूमदार शाह का नाम आप सबने सुना होगा। भारत की बेंगलोर की रहने वाले एक महिला है और यदि आप इनकी कहानी को पढ़िए, इनके बारे में गूगल में डाल के पढ़िएगा, लेकिन मैंने जितना थोड़ा सा लिखा है कि इन्होंने अपना बिजनेस 10,000 रुपए की नगद धनराशि से शुरू, कार के गैराज से। फर्स्ट ईयर आप इसको पढ़िए और देखिए कि 10,000 रुपए से शुरू किया हुआ बिजनेस आज की डेट में लाखों करोड़ में पहुंच गया है। और इनकी कंपनी का नाम है बाइकॉन। इसने 1200 पेटेंट जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड फाइल किया है। 984 पेटेंट इनके ग्रांटेड हैं। 448 ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ग्लोबली हैं। और किरण मजूमदार ऐसी व्यक्तित्व है दुनिया की जो एक ऐसा दवाई बनाती है माइक्रोब से एंजाइम निकाल करके, जिन्होंने दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाई है। मैं बच्चों से पूछना चाहूंगा, किसी को अंदाज है कि किरण मजूमदार शाह ने ऐसी कौन सी दवाई किसी सूक्ष्म जीवी से बना करके दुनिया में नंबर 1 बनी है? वो दवाई है इंसुलिन। आपके घर में यदि कोई शुगर का पेशेंट है तो एक ही रास्ता है कि उसको इंसुलिन दे, अभी उसकी जान बचेगी। बहन किरण मजूमदार शाह ने इंसुलिन बनाया, तो दुनिया के सबसे बड़ी प्रोड्यूसर कंपनी है इंसुलिन की और विश्व के 200 से अधिक देशों को इंसुलिन की सप्लाई करती है और सबसे चीप इंसुलिन इस कंपनी में बनता है। किरण जी की जो शैक्षणिक योग्यता है आप सब जान लो, एमएससी है, ये पीएचडी नहीं है। विश्व के तमाम विश्वविद्यालयों ने इनको ऑनर्स काजा पीएचडी अवार्ड किया है। भारतवर्ष में पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा है। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, आपको एक ही उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ऐसे हजारों उदाहरण आपको मिलेंगे कि जिन्होंने अपनी मेहनत से थोड़ी रकम लगा के कंपनी बनाई और आज दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियों में इनका नाम है। इनके पास 3000 से अधिक वैज्ञानिक काम करते हैं ग्लोबली, 3000। और मैंने पेटेंट प्रोफाइल दिखाई आपको कि 1200 पेटेंट, 984 पेटेंट अवार्ड और इनके पास 448 ट्रेडमार्क हैं। तो अपने आप में किरण मजूमदार साहब महिला जो हैं, ये इनको मैं सल्यूट करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ यदि अगला भारत रत्न इनको मिल जाए तो हम सबको खुशी होगी, इसलिए कि दुनिया के अरबों करोड़ों लोगों को इन्होंने सस्ते दर पे इंसुलिन प्रोवाइड की। इनकी कंपनी में इंसुलिन अकेले नहीं बनता है, ये एंजाइम टेक्नोलॉजी की दुनिया की बड़ी हस्ती है और एंजाइम का इस्तेमाल चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, कन्फेक्शन, फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, साबुन, आप देखिए कितने डिटर्जेंट हैं उनमें भी एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से एंजाइम के उपयोग से इन्होंने सारी दुनिया को एंजाइम दिया है और आज विश्व में जानी जाती है सिर्फ एंजाइम प्रोडक्शन। अगली स्लाइड।
अब मैं आपको एक कुछ जल्दी जल्दी चित्र दिखाता हूं कि किस तरह से दुनिया के तमाम देशों में अपने इन्वेंशंस के पेटेंट लिए थे। अब आप यहाँ सिर्फ ईयर देखिए, 1867 में पेटेंट मिला था। भारत पेटेंट 1970 में लागू किया गया था। इसका मतलब 97 वर्ष पहले अमेरिका ने, ये यूएस पेटेंट नंबर है, आप यहाँ देखिए, ये यूएस पेटेंट नंबर है, ये ग्रांट किया गया है 1866 में। और यदि आप इस नंबर को गूगल में डालोगे तो सारे डिटेल इस मशीन के आ जाएंगे, और ये मशीन का उपयोग डे टू डे वर्क में होता है। अगली स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। स्टेपलर मशीन एक होती जो आप लोग, नेक्स्ट इसके पहले वाली, ये स्टेपल रिमूवर दिखाए। स्टेपलर का पेटेंट 1955 में 1955 में मिला, और दुनिया के हर देशों में हर पढ़ा लिखा आदमी स्टेपलर का इस्तेमाल करता है। आप लोग भी करते होंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये स्टेपलर 1955 में अमेरिकी पेटेंट लिया गया था। नेक्स्ट वन प्लीज। ये स्टेपल रिमूवर, कोरस कंपनी ने स्टेपल रिमूवर की टेक्नोलॉजी लेकर के और एक भारतवर्ष में सबको मुहैया कराता है। ये पेटेंट काफी पुराना, ये भी देखिए 2009-10 में मिला। इसके पहले जब ये स्टेपल रिमूवर नहीं होते थे तो लोग नाखून से पिन को, स्टेपल को नाखून से निकालते थे। अब इस मशीन के आ जाने से कितनी सुविधा हो गई। ये उदाहरण आपको अजीब से लगते होंगे कि हम लाइफ साइंस की बात करने आए हैं, लेकिन हम आपको पिन और स्टेपलर और प्रिंटिंग मशीन दिखा रहे हैं, सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि यदि आपके यहाँ विज्ञान के विषय की पढ़ाई होती है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, फिलोजी की, बॉटनी की, इस तरह से आप इन उदाहरणों से नई नई चीजों के बारे में अपने दिमाग में सोच पैदा कर सकते हैं, उनके इन मशीनों में सुधार ला सकते हैं, और एक नया पेटेंट आपको दिया जा सकता है। नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। पेपर क्लिप्स, अब आप सोच रहे हैं कि पेपर क्लिप में क्या है, लेकिन इसका भी 1867 1867 में पेपर क्लिप का दिया गया था, और आज सारी दुनिया में सारे लोग पेपर क्लिप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। ये जल्दी जल्दी दिखा दीजिए, खाली उदाहरण दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। ये पेपर क्लिप के साथ में कुछ पेपर क्लिप्स के नए तरीके हैं, उनके भी पेटेंट 1896-97 में दिए गए। नेक्स्ट वन प्लीज। ये भी जो है जेम्स क्लिप हम आप बोलते हैं अपने आदेश में। पिन है, पिन के 3 अमेरिकी पेटेंट हैं, और ये भी करीब 150 साल पुराने हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। नेक्स्ट, मोटरसाइकिल के हेलमेट को पेटेंट मिला है, ये 2016 में दिया गया था। इसमें बहुत सारे इनोवेशन हुए, दर्जनों पेटेंट जो है वो कम से कम मोटरसाइकिल के हेलमेट पे दिए गए। नेक्स्ट वन प्लीज। लेड पेंसिल जो इस्तेमाल करते हैं, इसका भी पेटेंट बहुत पुराना है। नेक्स्ट वन। ये नंबर आप देखते जाइए, पावर पॉइंट मैंने शेयर किया है, आप लोग कॉपी कर लीजिए, और इसके बाद अपना गूगल में जाके लेड पेंसिल के साथ आप रबर लगी होती है किनारे, इसका भी पेटेंट है। और आप के लिए मजबूर कर देगा ये सब चीजें कि देखिए पेंसिल का भी पेटेंट लिया, उसके टिप पर रबर लगा दिया, उसका भी पेटेंट लिया, और आगे भी तमाम सारे पेटेंट इस पे लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। पेंसिल शार्पनर जो आप कहते हैं ना, शार्पनर का पेटेंट है 1897 का, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, क्विकली दिखाते चले जाओ। कैंची का पेटेंट है। नेक्स्ट, पुश पिन जो आप लगाते हैं ना, डिस्प्ले बोर्ड पे अपने रिप्रिंट लगाते हैं, न्यूज़पेपर क्लिपिंग लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, तरह तरह के पेटेंट हैं। फाउंटेन पेन का पेटेंट है। ये मैंने जानबूझ के ऐसी चीजों को दिखा रहा हूँ जो आप डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। बाल पेन का पेटेंट है। नेक्स्ट वन प्लीज, क्विकली चलते चलो। होल्डिंग स्टूल है। यहाँ जरा रुक जाइए, मैं बताना चाहता हूँ, इस पेटेंट ने दुनिया में अरबों रुपए का व्यापार किया, अरबों का, करोड़ों का भी, अरबों का। अब इस इन्वेंटर का देखिए इसने क्या किया है। आप जो पेप्सी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना प्लास्टिक के स्ट्रा से,
इनोवेशन इसमें किया कि एस्ट्रा को डिफरेंट फ्लेवर से, डिफरेंट फ्लेवरिंग एजेंट से एस्ट्रा को फ्लेवर कर दिया। तो यदि आपका बच्चा कोको कोला मांगता है, कितना कोको कोला पियाओगे, नुकसान करता है, इट इज हार्मफुल टू हेल्थ। सो आप कोक वाला जो एक्स्ट्रा है, फ्लेवर्ड एक्स्ट्रा, वो खरीद लीजिए और पानी उसको दीजिए, तो उसको पिएगा तो उसको कोक की स्मेल आएगी। तो लेमन, कोक, एप्पल, तरह तरह के जूसेस जो आते हैं मार्केट में, ये एक्स्ट्रा उसी फ्लेवर में पानी पीजिए, एक्स्ट्रा मुंह में लगाइए, आपको लगेगा कि आप लेमन जूस पी रहे हैं, आप एप्पल जूस पी रहे हैं, आप पेप्सी पी रहे हैं, आप कोक पी रहे हैं। तो ये इनोवेशन ने दुनिया के मार्केट में अपनी एक ऐसी जगह बनाई, और खास तौर से उन बच्चों की आदत को सुधारने में जो ये सॉफ्ट ड्रिंक पी करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। ये जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम, अमेरिका में आप जाओगे ना, तो बच्चे 80-80 किलो के, 90-90 किलो के दिखते हैं, वो सिर्फ यही सब कोक पी करके और बटर और घी खाते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। ये फोल्डर है प्लास्टिक के, आप फोरस कंपनी से खरीदते हो, ये सारे पेटेंटेड आइटम है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। मोबाइल फोन पर इतने पेटेंट हैं, आप हैरान रह जाएंगे। आप सोचेंगे 10, 20, 50 पेटेंट होगा। अगली स्लाइड दिखा दीजिए, नेक्स्ट वन प्लीज। इसमें करीब करीब विज्ञान के हर विषय के लोग जुड़े हैं, और 2,50,000 एक्टिव पेटेंट जो हैं उस मोबाइल फोन के। अब आप अपना दिमाग लगाइए सोचने में, मोबाइल फोन आपकी जेब में टहलता है, 2.5 लाख इन्वेंशंस पेटेंटेड है उस पर। नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। एक ये पेटेंट के उस पर्टिकुलर पेज को मैंने जानबूझ करके आपको दिखाया है कि प्रोटेक्टिंग डिवाइस फ्रॉम इम्पैक्ट डैमेज। जो आपका मोबाइल गिरने से टूट जाता है, एक सिंपल डिवाइस का विकास किया गया है, जिसमें आपका मोबाइल अगर पॉकेट से गिर जाता है तो टूटेगा नहीं। इसका भी यूएस पेटेंट 2011 में इन्वेंटर से लिया। नेक्स्ट क्विकली रन थ्रू करिए, आगे हमें बहुत काम की बात लाइफ साइंस को बतानी है। ये सारे मोबाइल के एप्लीकेशन है। मोबाइल में आप ये देखेंगे कीबोर्ड भी आ गए हैं, आप उसको कंप्यूटर की तरह काम कर सकते हैं। तो ये आप बैठ करके जब भी आपके पास खाली समय हो, गूगल में जाइए, यूएस पेटेंट ऑफिस की साइट पर जाइए, uspto.org.in, और अपने कीवर्ड को डाल दीजिए मित्रों। आपको ये सारे पेटेंट सेकेंडों में आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। उनकी टाइटल पढ़िए, उनके क्लेम्स पढ़िए, फिर सोचिए, कैन आई डू सम इंटरवेंशन फ्रॉम माई माइंड टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग पेटेंट? Yes, you can do that, and that is the reason millions of patents are granted every year from all across the world by this. They are filed by students, students and the faculty of the universities and institution. Next one, please. ये मोबाइल की एप्लीकेशन हैं, मोबाइल के दुनिया भर के इसलिए दिखाए हैं कि आज मोबाइल के बिना आपको लगता है जीवन अधूरा है। हर आदमी के जेब में स्मार्टफोन है, और ये कोविड ने और भी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा दी है मित्रों। मैंने कुछ पेटेंट्स की ज्यादा उदाहरण दिए, चलते जाइए, अभी आप देख लीजिएगा अपने आप। अब आप देखिए, यदि आपको स्मार्ट वॉच पता हो, घड़ी, अगर आप इधर कोविड के टाइम पर ऑक्सीमीटर जिसको नहीं खरीदना है, आप एक स्मार्ट वॉच खरीद लीजिए 2,500-3,000 की, जिसमें आपको ऑक्सीजन का लेवल आपके ब्लड में बताएगा, आपका ब्लड प्रेशर क्या है वो बताएगा, आपने कितनी कैलोरी बर्न की वो बताएगा। तो ये सारी डिवाइसेस पेटेंटेड हैं, और ये सारी डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल है। तो मित्रों, कुछ उदाहरण इसलिए बताए जो आसानी से आपके दिमाग में घुसेंगी। लाइफ साइंस का जिक्र मैं लंबे से करने जा रहा हूँ, आपको काफ़ी चीज़ों को मैं बताऊंगा भी। अब ये पेटेंट के रजिस्ट्रेशन की कैसी विधाएं हैं, किस तरह से उसको करते हैं, उसको फाइल करना होगा रेलिवेंट ऑफिस में, वो मैं बताऊंगा। भारतवर्ष में 4 पेटेंट ऑफिस हैं, मुख्यालय कलकत्ता में है, और 4 उसके जो 3 और ऑफिस वो मैं बताऊंगा। और आप देखिए, फाइलिंग का प्रिस्क्राइब फॉर्म में फाइल करिएगा, फिर ये एग्जामिनर के पास जाएगा स्क्रूटनी करने के लिए। यदि सब कुछ सही है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, गजट में प्रकाशित कर दी जाएगी, ये पेटेंट रजिस्टर में एंटर हो जाएगी, और यू विल गेट ए सर्टिफिकेट अवार्डेड। सो जो इन्वेंटर्स हैं उनको सर्टिफिकेट आ जाएगी। यदि आपने पेटेंट सही तरीके से नहीं फाइल किया है
उसमें एग्जामिनर्स ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। इफ यू आर एबल टू फुलफिल द ऑब्जेक्शन ऑफ द एग्जामिनर्स, तब आपको पेटेंट अवार्ड हो जाएगा। लेकिन यदि आप उनकी क्वेरीज का जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपका पेटेंट रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक बार एप्लीकेशन फी जमा कर दी तो आपकी पेटेंट ऑफिस आपकी एप्लीकेशन फी को फॉरफिट कर लेगा, आपको लौटाएगा नहीं। ये सबसे अहम बात है। इसलिए यदि आप पेटेंट को फाइल कर रहे हैं तो सबसे आवश्यक है कि पेटेंट की प्रॉपर सर्च करिए। मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आप लोग देखते रहिए। एक अच्छी खबर ये है, आपको मैं दे दूं कि जो हमारे कॉलेज टीचर हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक संस्था, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, और वो उस मुख्यालय में आप कोई भी कीवर्ड लेकर आ जाइए, वहाँ पेटेंट सेल है। आपका निःशुल्क पेटेंट सर्च करके आपको सीडी में आपकी सूचना दे दी जाएगी। ये सिर्फ सुविधा उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कार्यरत हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेज में हो, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, आईसीआर सिस्टम में हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो। तो ये सारे लोग यूपीसीएसटी सूरज कुंड में, जो केजीएमसी मेडिकल कॉलेज हमारा है उसके पास में स्थापित है, वहाँ पे आप वेबसाइट पर जाइए, उनकी पेटेंट सेल देखिए और उनको रिक्वेस्ट करिए कि मेरा ये सर्च कर दीजिए, और सर्च करके मेरे को उसकी सर्च रिपोर्ट भेज दीजिए। तो जहाँ पर आपको पैसे दे के ये काम करवाना होता है, ये निःशुल्क सुविधा उत्तर प्रदेश के लोगों को ले दी गई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसे मैंने बताया, गजट जिनका पेटेंट ऑफिस का है, इसमें प्रकाशित होती जर्नल में, ये उसकी साइट है ipindia.nic.in, इसमें आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट वन प्लीज। ये फी शेड्यूल है। आए दिन लोग मुझसे फोन करके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं इस विश्वविद्यालय में काम करता हूँ, पेटेंट फी कितनी लगेगी। तो लोगों को मेरे को बताने में बड़ा वो लगता है कि भैया आप पढ़े लिखे हो, गूगल पे जाके इंडियन पेटेंट ऑफिस की साइट पर जाके खोज लो। फिर भी पूछते हैं, दिन फोन आता है। तो ये वो फी शेड्यूल है जो आपको मैंने साइट से डाउनलोड करके स्लाइड बनाई है, ये देख लीजिए। मैं बाद में आपको इसकी जिस्ट बता दूंगा कि कितना पैसा लगता है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ये जाने में बताया कि 4 ऑफिस है भारतवर्ष में, दिल्ली ऑफिस, चेन्नई ऑफिस, मुंबई ऑफिस, कलकत्ता ऑफिस, कलकत्ता मुख्यालय है। सारे हिंदुस्तान के लोग चाहें तो कलकत्ते से अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन हम आते हैं इंडिया में तो नॉर्दर्न इंडिया का जोन ऑफिस जो है पेटेंट का दिल्ली में है। तो मित्रों, आपको दिल्ली पेटेंट ऑफिस की साइट पर जाकर के अपने पेटेंट को फाइल करना है। नेक्स्ट वन। ये स्नैपशॉट है इंडियन पेटेंट ऑफिस वेबसाइट के कवर पेज की, आप देखिएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जो राइट पैनल पे जाएंगे, पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो आप पेटेंट को क्लिक करिए तो आपको पेटेंट के रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं हैं एक क्लिक के साथ मिल। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि यदि आपके पास थोड़ा भी समय मिलता है तो मित्रों, ये समय आप गूगल पे जाके पेटेंट में गुजारिए, और जब पेटेंट में गुजारेंगे तो इसके जो मजे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि वैज्ञानिक और प्रोफेसर तो मैं था ही, लेकिन मुझे करोड़ों रुपए इंडस्ट्रीज से रॉयल्टी के फॉर्म में मिली जो आम अध्यापक को नहीं मिलती। मैं अपने अनुभव शेयर करूंगा आपसे। मेरा आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है अनुरोध करके कि आप सब कम से कम आज से सोचना शुरू कर दीजिए कि मैं पेटेंट के बारे में सोचूंगा, पढ़ूंगा, और यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आपके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे आप मेल भेजिए, मैं आपकी समस्याओं का निदान करूंगा। नेक्स्ट वन। अब आता है कैसे पेटेंट को फाइल करें। ये फाइलिंग के तरीके हैं, और मैंने फाइलिंग में सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचर
आपको क्या रिक्वायरमेंट, उन चीजों का ही जिक्र यहाँ पे मैं माननीय प्रधानाचार्य महोदय से और मैं रश्मि जी से अनुरोध करूंगा कि जो बच्चे या जो अध्यापक इस पावर पॉइंट को शेयर करना चाहते हैं उनको आपको निःशुल्क प्रोवाइड करिए, ताकि ये सूचनाएं वो जो गूगल पर घंटों घंटों बर्बाद करके भी शायद न मिले, वो ये मैं सूचनाएं आपको दे रहा हूँ। एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर 1 डाउनलोड करिए, फॉर्म नंबर 2 डाउनलोड करिए, और यही और फॉर्म नंबर 3, फॉर्म नंबर 5, तो 1 2 ये 4 ऐसे फॉर्म हैं जिनकी आवश्यकता सिर्फ आपको है। बकिया जो 20-25 पड़े हैं आपके काम के लिए। कोई उद्यमी इंडस्ट्री है उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, कोई कंपनी है उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन एकेडमिया के लिए जहाँ से आप सभी जुड़े हो मेरे साथ, उनके लिए इन्हीं 3 फॉर्मों की 4 फॉर्मों की जरूरत पड़ती है। तो ये आप इसको देख लें। इसमें प्रोविजनल और कंप्लीट पेटेंट फाइल करने के लिए है, एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है, ड्राइंग अगर बनानी पड़ती है, ये सारे मेथड्स इसमें लिखे हुए हैं, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। अब ये फाइलिंग एप्लीकेशन के लिए जरूरी क्या है कि आप साइट पर जाओगे तो एप्लीकेशन फी इज वेरी वेरी सिंसियर। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, जो आप हर चीज इन द लाइन पढ़ोगे साइट से, लेकिन मोटी मोटी बात मैं कह रहा हूँ। आप अगर किसी कॉलेज से हो, यूनिवर्सिटी से हो, इंस्टीट्यूशन से हो, और यदि आप इन्वेंटर हो और एसआईनी आपकी संस्था है, तो लगभग 8,000 रुपये आपकी फी आएगी। 8,000। यदि आपका पेटेंट डॉक्यूमेंट 30 पेज, अगर 30 पेज से बड़ा डॉक्यूमेंट है तो उसकी अलग फी लगेगी। और ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, नो एक्स्ट्रा फी चार्ज अप 30 पेजेस एंड 10 क्लेम्स। जो क्लेम लिखेंगे 10 क्लेम होंगे और आपका 30 पेज का डॉक्यूमेंट होगा, तो 8,000 रुपये लगेगी यदि आप ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे पैसा, और यदि डिमांड ड्राफ्ट बना के भेजते हैं तो 8,800 रुपये लगेगी। यानी एक शोधार्थी को, एक किसी अध्यापक को यदि पेटेंट फाइल करना है तो 8,000 लगेगा। दूसरी सबसे अहम बात जो है वो है कि पेटेंट जब फाइल हो जाती है तो एग्जामिनेशन के लिए उसको भेजना पड़ता है, पेटेंट एग्जामिनेशन। उसके लिए भारत सरकार ने पेटेंट एग्जामिनर्स नियुक्त किए हैं और उसकी फी जो है लगभग 20,000 रुपये। यदि आप चाहते हैं कि मेरा पेटेंट एग्जामिनेशन के लिए तुरंत चला जाए तो 8,000 रुपये पहले भेजिए और 20,000 साथ में भेज दीजिए, तो आपका पेटेंट इमीडिएटली पेटेंट एग्जामिनर दिया जाएगा। अन्यथा क्या होगा वो भी मैं बता दूं। 18 महीने की सीमा है। 18 महीने बाद आपका पेटेंट पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, यानी उसको ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा, अवार्ड नहीं किया जाएगा। आप इसको समझ लें। कई लोग अपना बायोडाटा मजबूत करने के लिए तुरंत पैसा जमा करके पेटेंट को सेम डे प्रकाशित करा लेते हैं, लेकिन जो पेटेंट के जानकार लोग होते हैं उनको ये पता है कि पेटेंट कैसे पब्लिश किया जाता है। पेटेंट पब्लिश होगा यदि आप एडिशनल फी 20,000 जब पेटेंट आपका इमीडिएटली पब्लिश हो जाएगा, लेकिन अवार्ड होने की कोई गारंटी नहीं। अवार्ड तब होगा जब पेटेंट एग्जामिनर क्लीन चिट देंगे, और इसमें 4 से 5 साल का मिनिमम वक्त लगता है। कई बार ये समय 9 से 10 वर्ष भी लग जाता है। यदि आप बहुत भाग्यशाली हैं तो आपको 3, 4, 5 साल में पेटेंट अवार्ड हो जाएगा, अन्यथा 10 साल भी लग सकता है। तो मित्रों, पेटेंट फाइल करना एक बात हो गई, पेटेंट फी जमा कर दिया, पेटेंट एग्जामिनेशन फी दे दिया, और यदि आपको लगता है कि आपकी संस्था का नए एक्रेडिटेशन होने वाला है या आपको रीडर से प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर से रीडर बनना है, तो उस समय आप अपने पेटेंट को जल्दी प्रकाशित कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग फी जमा करनी पड़ेगी। ये हुई पेटेंट के फाइलिंग और प्रोसेसिंग की। नेक्स्ट वन प्लीज। अब मैं आपको जिक्र करूंगा कि भारतवर्ष के अलावा भी दुनिया में तमाम पेटेंट ऑफिसेज हैं, जिससे आपको समझ में आ जाती बात। If you feel that my patents can be utilized by other countries in the world, you may file your patent to different countries in the world. ये यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ये USPTO www
patent.gov.in, ये यूएस पेटेंट ऑफिस है, ये यूरोपियन पेटेंट की वेबसाइट है, ये यूके की वेबसाइट है, जापान की है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और ये पीसीटी है। पीसीटी का मतलब होता है ग्लोबल पेटेंट। ग्लोबल पेटेंट जो है दुनिया के 220 से अधिक देशों को जाता है। यानी यदि आप समझते हैं कि आपका कोई पेटेंट ऐसा है जिसका लाभ विश्व के सारे लोगों को हो सकता है, तो आप पहले इंडियन फाइल पेटेंट करिए और वहाँ पे देश में जाके आप पीसीटी फाइल करिए। आप दुनिया के 225 देशों में आपका पेटेंट जा सकता है। ये आपको समझ में आता है कि हमें 220-25 देशों में नहीं करना है, हमें सिर्फ सेलेक्टेड कुछ कंट्रीज में करना है। तो आपको भी चॉइस मिलेगी कि आप अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, यूरोप में, जो भी आप चाहते हैं उनको आप सर्च करके आप अपना टिक करिए और उन कंट्रीज की फी को डिपॉजिट करना पड़ेगा पीटीओ के थ्रू, तब आपका पेटेंट उन देशों में भी फाइल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगली स्लाइड। अब ये देखिए, जब मैंने शुरू किया था पेटेंट का काम 2000 के आसपास, तो उस समय कंप्यूटर का ज्ञान भी ज़्यादा नहीं था और ये जो वेबसाइट्स थी ये सब इतनी उपलब्ध नहीं थी, और हमें दिल्ली जाना पड़ता था डिस्केयर, जहाँ पेटेंट सर्च ऑफिस सिर्फ एक जगह होता था। काम 15-15 दिन के लिए जाके बैठते थे तब ये काम होता था। आज ये काम कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप इन वेबसाइट, मैंने लेफ्ट पैनल देखोगे सारी फ्री वेबसाइट्स हैं और राइट पैनल में पेड वेबसाइट हैं। तो ये वेबसाइट पे जाके अपने पेटेंट सकते हो, लेकिन आपको ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ ज्ञान के लिए। उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको यूपीसीएसटी उत्तर प्रदेश का जो कार्यालय लखनऊ में है वहाँ आना है, या उनको मेल पे संपर्क करना है। आपको सर्च सुविधाएं निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी और आप वहाँ पे ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज, क्विक। अब पेटेंट करने के पहले आपको ये जानना होगा कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ कि नया है ये वाकई पेटेंटेबल है। तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी पेटेंटेबल। सो पेटेंटेबिलिटी की क्राइटेरिया क्या सचमुच फुल कर रहा है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, नॉवेल्टी की बात मैंने बिगिनिंग में करी थी। योर इन्वेंशन मस्ट बी नॉवेल, so you have to prove novelty. Then third point is non-obviousness, meaning thereby it should not be known to anybody on earth other than you. जो भी इन्वेंशन कर रहे हैं आपके अलावा दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जाने, और आपके नॉवेल इन्वेंशन का इंडस्ट्रियल यूज होना चाहिए। ये 4 प्रमुख बातें मित्रों पेटेंट की आवश्यक है। यदि ये 4 बातें नहीं है तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। ये मुख्य बातें हैं कॉपीराइट की। इसमें इंटेलेक्चुअल क्रिएशन हो, लिटरेरी वर्क हो, म्यूजिकल वर्क हो, आर्टिस्टिक वर्क हो, ओरिजिनल नो कॉपी, अथराइजेशन। और ये जब मैं 2006 में बीएचयू प्रोफेसर ज्वाइन किया तो मैंने अपने लेक्चर में सबसे पहले यही कहा कि दुर्भाग्य की बात है हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों ने बिस्मिल्लाह खां की सहनाई वादन का पेटेंट नहीं कराया। ये मोस्ट अनफॉर्चुनेट है। ये कराना चाहिए था। इसलिए कराना चाहिए था कि आज आप देखें कि लता जी हैं, आशा जी हैं, तमाम भारतवर्ष के जो सिंगर हैं, इनके सबके म्यूजिकल वर्क के कॉपीराइट में प्रोटेक्शन किए गए, इसीलिए इन सबों को करोड़ों करोड़ रुपए सालाना रॉयल्टी मिलती है। लता जी और आशा जी की रॉयल्टी आप सुनेंगे तो, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता हूं। आप लोग गूगल पे जाके देखिए कि इन लोगों की एनुअल रॉयल्टीज कितनी आती है, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि काश बिस्मिल्लाह खां, जिनको भारत सरकार ने भारत रत्न दिया, लेकिन उस व्यक्ति का एक भी म्यूजिकल वर्क को पेटेंट नहीं कराया गया, इसीलिए उनको एक नया पैसा कहीं से नहीं मिलता। जब लाइव कंसर्ट करते थे हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब, तो जो पैसे मिल जाते थे वो ले आते थे। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि उनके जो सन्स हैं, उन्होंने उनकी सहनाई बाजार में चोरी करके बेच दिया था। काश कि मैं 50 साल पहले पैदा हुआ होता और बिस्मिल्लाह जी की सहनाई का
म्यूजिकल वर्क को अगर मैं प्रोटेक्ट कराया होता तो मुझे आज बड़ी खुशी होती। ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं जो मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा समय अभाव के कारण, इसलिए कि मुझे अभी आपको बायोटेक्नोलॉजी की बात करने में थोड़ा मुझे वक्त लगेगा। नेक्स्ट वन, ट्रेडमार्क। मैंने आपको दो उदाहरण दिए हैं जिनके लोगो बने हुए, लोगो का रजिस्ट्रेशन है और इसको देख के ही आपको पता चल जाता है कि कोक कंपनी क्या करती है, पेप्सी क्या बनाती है। और मैंने बताया भी कि कोको कोला का ट्रेड सीक्रेट है, दुनिया के किसी व्यक्ति को नहीं पता अदर देन द ओनर द कंपनी कि व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोको कोला। नोबडी इन द वर्ल्ड कुड रिप्रोड्यूस बाय एनी रिवर्स इंजीनियरिंग व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोको कोला। अगर आप में विज्ञान के शोधार्थी बैठे हैं, शोध छात्र हैं, अध्यापक हैं, तो रिवर्स इंजीनियरिंग से अगर आप बना लेते हैं, उसमें कुछ सुधार कर लेते हैं, तो आप एक पेटेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज, अगली स्लाइड। ये जीआई के कुछ उदाहरण हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के। अब ये अवेयरनेस भारतवर्ष में आई है। बनारसी साड़ी को जीआई मिला है, मलिहाबादी दशहरी आम को मिला है, कांजीवरम सिल्क को मिला है, उत्तर काशी के शिव काशी के क्रैकर जो मुर्गा छाप है। ये मैंने कुछ उदाहरण हमने बड़े लिमिटेड दिए। ये पेठा का, आगरा का, ये चाय दार्जिलिंग की है, कोल्हापुर का चप्पल है, नागपुर के ऑरेंजेज है। ये सारे जीआई दिए गए हैं। आज की डेट में 150 से अधिक जीआई ग्रांट हुए हैं। तो यदि आप सोचते हैं भदोही के कालीन को भी जीआई मिल गया है, तो अब आप वहाँ चूक जाएंगे। तो भदोही के कालीन को भी जीआई मिल गया। तो इस तरह से आप अगर लगता है कि ये हमारा प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल इंडिकेटर की यूनिक है, you can apply for GI and you will get your product will have opportunity in the market and you can sell your product globally having the GI tag. Next one please. Next slide. तिरुपति का लड्डू, ये भी विशिष्ट लड्डू है और ये आप दर्शन के लिए जाते हैं तो आप एक लड्डू के लिए लाइन में लगते हैं। ये भी जीआई ग्रांटेड है और आप देखेंगे इसमें मद्रास हाई कोर्ट में मुकदमा चला था, इस पर लंबा जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन जीआई तिरुपति के लड्डू को है। यूनिकनेस इन दिस लड्डू, यू कैन कीप दिस लड्डू फॉर मंथ्स टुगेदर, ये खराब नहीं होता। नेक्स्ट वन प्लीज, जल्दी दिखाई दूसरी स्लाइड। बनारसी सिल्क की बात मैंने जैसे अभी कही थी ना, बनारसी सिल्क को भी पीसीटी ग्रांट हुआ है, तो अखबारों में इसको छापा था, तो मैंने कहा चलो एक स्लाइड इसकी बना देते हैं, देख लेंगे। एक स्लाइड है बड़ी अहम सबके लिए, खास तौर से जो विज्ञान के, जूलॉजी के और बॉटनी के छात्र छात्राएं उनके लिए। अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट ये कहा गया है कोई भी लाइव मटेरियल, चाहे बीज हो, चाहे माइक्रोब हो, चाहे इंसेक्ट हो, आप एक देश से दूसरे देश नहीं ले जा सकते। ले जाते हैं तो आपको उस पर पेनलाइज किया जाएगा। और दुनिया का ये पहला केस सन 2010 में यूगोस्लाविया के एक कपल भारतवर्ष आए थे, जूलॉजिस्ट थे प्रोफेशन से, और मेघालय से ये कुछ तितलियां पकड़ कर ले जा रहे थे अपने देश में, और इनको दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया और उसके तहत बायोडाइवर्सिटी एक्ट बराबरी में इनके ऊपर मुकदमा चलाकर इनको जेल में डाल दिया गया। सर आपकी माइक म्यूट है। अगली स्लाइड में ले जाइए मैडम। नेक्स्ट, ये मैंने कुछ पेटेंट्स अपने, थोड़े से ज्यादा नहीं, ये मैंने हमारे पेटेंट के जो माइक्रोब पर है, मैं बेसिकली माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। ये इनके नाम क्या है, पेटेंट नंबर है, इसको गूगल में डाल के आप देख लीजिए। नेक्स्ट वन दिखाइए। नेक्स्ट वन,
ये सारे माइक्रोबियल पेटेंट है। नेक्स्ट वन, ये हमारे वैरायटी के पेटेंट है अमेरिका में जो लिया है, और अभी जो BHU से मैंने 8 पेटेंट किए उनकी इस लिस्ट में मैंने नहीं शामिल किया है। नेक्स्ट वन, अब पेटेंट होता है कमर्शलाइज करना, तो हमने जो कमर्शलाइज किया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 2002 में गुजरात की कंपनी है GSFC बड़ोदरा, इस टेक्नोलॉजी को हमने ट्राइकोडर्मा की टेक्नोलॉजी को 1 करोड़ में ट्रांसफर किया है। लाइसेंस भी was 1 करोड़। ये आप देखिए इसको, तो ये प्रोडक्ट है, इस पे CSIR का लोगो यहाँ लगा हुआ है। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ पेटेंट। यदि आप कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हो, लाइसेंस करते हो, तो इंस्टीट्यूशन को लाइसेंस भी मिलती है और उसका पैसा बढ़ता है इन्वेंटर्स में। नेक्स्ट वन प्लीज, क्विक बढ़िए जल्दी जल्दी। ये दूसरा प्रोडक्ट है ट्राइका, वही सेम टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने हैदराबाद की कंपनी को दिया है, जो ट्राइका के नाम से प्रोडक्ट को लॉन्च करके भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में, ये उत्तर प्रदेश सरकार को, अब आप देखिए सरकारी प्रोडक्ट ट्राइकोडर्मा, यूपी की 9 प्रयोगशाला इसका बनाती है, लाइसेंस ली हुई। बनारस में भी एक प्रयोगशाला है, आप लोग जा करके कलेक्ट्री फार्म के पास है BLW के, वहाँ देख सकते हैं ट्राइकोडर्मा का उत्पादन। गवर्नमेंट से भी हम लोगों ने 1 तक ट्रांसफर हुई। ये बेवेरिया वैसे आना है जो दीमक को मारती है, ये भी बायोपेस्टिसाइड, ये टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हुई है। ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो बैसिलस सबटिलिस, जो भारतवर्ष में अकेला प्रोडक्ट है जो कई 100 करोड़ का व्यापार करता है, और इसमें भी CSR टेक्नोलॉजी लोगो लगा हुआ, देखिए पेटेंट नंबर लिखा हुआ है। तो ये मित्रों ब्रीफ में मैंने आपको इसलिए दिखाया, माइक्रोबायोलॉजी के कुछ एग्जाम्पल है। जब आप टेक ट्रांसफर करते हो तो न्यूज में आता है, अखबारों में आता है, टेलीविजन पर आता है, आपको अच्छा लगता है कि मेरी टेक्नोलॉजी जो है इसका नेशनल टेलीकास्ट हो। IMDRI से जो हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया था, तो CSR न्यूज के फ्रंट पेज न्यूज आई थी। नेक्स्ट वन प्लीज। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता था। ये मैं इस किताब को पढ़कर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अनलीजिंग द नॉलेज इकॉनमी बाय प्रबुद्ध गांगुली, इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे काफी नॉलेज हुआ। ये 2013 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो वाइपो ने प्रकाशित किया था, वेब पर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। नेक्स्ट, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इनोवेशन, ये करीब 2000 पेज की किताब है, 2 वॉल्यूम में है। इस किताब में पूरी दुनिया से जो एग्रीकल्चर एंड हेल्थ सेक्टर के पेटेंट्स हैं, ये इंडियन पेटेंट एक्ट कब लागू किया गया था 1970 में, उसके सारे नियम कायदे हैं। ये जब CSIR में हमने नौकरी ज्वाइन की थी 2000 में, तो इस समय ये जो ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ CSIR पर्सनल, मैं अनुरोध करूंगा प्राचार्य महोदय से कि कम से कम ऐसे मैनुअल यदि आप बना करके अपने सारे विद्यार्थियों को, अपने टीचर्स को दें, ताकि उनके अवेयरनेस आए। और मैनुअल बनाने में यदि आप मेरी मदद चाहते हैं तो मैं आपको पूरी मदद करूंगा कि कैसे आप मैनुअल को डिजिटल फॉर्म में, ये टेक ट्रांसफर के 3 किताबें हैं जो हमने पढ़ करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे करी जाए, कैसे उद्यमियों को आकर्षित किया जाए, कैसे उनको ये कहा जाए कि भाई हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है इसकी इतनी फीस आपको हमारे विश्वविद्यालय को, हमारे इंस्टीट्यूट को देना पड़ेगा। ये हमारी एक बुक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, जो कैवी इंटरनेशनल UK से प्रकाशित हुई थी 2 साल पहले। नेक्स्ट वन, ये अभी लेटेस्ट है हमारी बुक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज माइक्रोबायोलॉजी, ये स्प्रिंगर जर्मनी से प्रकाशित हुई है। इनमें आपको दुनिया के तमाम सारे ऐसे लोगों ने आर्टिकल कंट्रीब्यूट किया है जिसको पढ़ करके आप IP के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैंने ये 72 स्लाइड की मदद से आपको दिखाने का प्रयास किया है। अब यदि आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना है IP रिलेटेड, I will be most happy to answer those questions. And if you are really having some innovation in your mind or you have done some experimentation, you may approach me on my email address, which was given on my first slide, or you can contact Dr. Rashmi Singh, who is having this presentation. You must have a copy of this presentation. This will help you in teaching program also and in your research program also. Thank you, sir.
Thank you, Rasmini, for providing me opportunity. Thank you. Thank you so much. Now you can have interactive session, discussion, question, so on and so on. Thank you. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर। यदि स्टूडेंट्स या फैकल्टी में से कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड हो आज के टॉपिक से तो आप प्लीज उसे चैट बॉक्स में लिखिए या अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हाँ, सवाल पूछे वो अच्छा रहेगा। मैं कम से कम थोड़ा उनकी बातों को सुनूंगा, उसका जवाब देने करूंगा, कुछ नई चीजें सुझाऊंगा कि अगर आप इसमें कर सकते हो, सर्टेनली विल गेट। चलिए। प्रोफेसर सिंह, मैं डॉक्टर डोंगरे बोल रहा हूँ। सर हो सकता है कि इसमें आज आपसे लोग प्रश्न न पूछ पाए, क्योंकि आज का लेक्चर सुनने के बाद डेफिनेटली लोगों में IBR मैं आप चैट बॉक्स में मंगा लीजिए सर, पेटेंट और के जैसे प्रति जी चैट बॉक्स में मंगा लीजिए, आई विल रिप्लाई। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि हो सकता है तैयार न हो कोई पूछने के लिए, लेकिन सर मैंने जैसे कहा ना, एक मैनुअल आपने लेकिन आज आपको यहाँ से जाने से पहले एक वादा करना होगा कि हम आपको अपने कॉलेज में जब बुलाएंगे तब आएंगे आप। जरूर सर, इस तरह की तब बहुत सवाल पूछे जाएंगे। नहीं एकदम आएंगे। और ज्ञानपुर तो मतलब ज्ञान का भंडार वहीं पे है, और मेरे यहाँ से, मेरे गांव से टीचर भी वहाँ बहुत पहले थे। तो मैं तो सोच रहा था कि प्रिंसिपल कोई बुजुर्ग होगा, अब तो बहुत युवा है सर। और जब भी कोई ऐसा मौका लगेगा, आई विल बी सर्टेनली विजिटिंग। रश्मि, आप लोगों का कोई प्रश्न, कम से कम अध्यापक लोग तो कुछ प्रश्न कर ही सकते हैं, बच्चे हो सकता है उनको निरीक्षण हो, बट या फैकल्टी के नाम। ये घर का जो नेटवर्क है इतना पुअर है ना सर। एक्चुअली सर फैकल्टी और स्टूडेंट्स दोनों ही मैसेज कर रहे हैं कि वो क्वेश्चंस जो है मुझे करेंगे और मैं आपको जो है पर्सनली फॉरवर्ड करके उसके आंसर लेंगे। हाँ, आप चैट में डाल देना, उसमें मैं आई विल रिप्लाई, मेल पे डाल दो। सर एक क्वेश्चन मेरा था कि और ये आपको मैं काम दे रहा हूँ रश्मि, कि आप जो है मैनुअल बनाओ और उसको वेब पर डालो, उसमें आई विल हेल्प यू, सो दैट सारे स्टूडेंट्स और सारे टीचर जो है पेटेंट की अवेयरनेस। और दूसरा क्या है, यदि आपकी अपनी वेबसाइट हो तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन माइक्रोबायोलॉजी वाली बुक मेरी जो है सॉफ्ट कॉपी है। KV doesn't provide soft copy, but yes, Springer provides soft copy. If you promise that it can be uploaded on the website of the college, only for personal use, I can share the soft copy of the book. So आप इस किताब को अपने उस पर डाल दीजिए, so that the students and teachers can go through, और वो फिर थोड़ी उसमें उनको जानकारी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। बिल्कुल सर, हम आपने ऐसा कहा कि मैनुअल को वेबसाइट पे अपने अपलोड करने के लिए और बनाना भी चाहे तो आप हमारी हेल्प करेंगे, तो हम बिल्कुल इस दिशा में काम आपको एक स्टेप A to Z बता देंगे कैसे करें। हाँ। और उसको आप सॉर्ट करके आप अपनी वेबसाइट पर डाल दो, सो दैट कि स्टूडेंट्स और टीचर सारा वहीं से जाए। और ये जो आपने अपनी सेल क्रिएट करी, इसके माध्यम से इन लोगों को ये जितने भी सारे स्टार्टअप के केसेज आ रहे हैं उनको भी आप प्रमोट करें। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि स्टार्टअप में हमेशा प्रॉब्लम होती है, जब भी हम भरने जाते हैं वहाँ पूछा जाता है कि क्या कोई कंपोनेंट आपका ऐसा है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है इसमें, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है सर। तो वहाँ पर बिल्कुल आपसे जो आपको मैं बता दूं, बिरैक का नाम तो सुना होगा। जी जी सर। बिरैक का भी अनाउंसमेंट आया है, जो इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरेक्शन पर प्रोजेक्ट मांग रहे हैं। तो आप लोग एक आध प्रोजेक्ट बिरैक में डालिए। ये DBT का मतलब एक समझ लीजिए सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, इट हैज बीन आउटसोर्स टू समबडी एल्स। सो बिरैक ने अच्छी फंडिंग कर रखी है भर में। इफ यू हैव ए नॉवेल आइडिया, if you have ideas which can be incubated, yes you can have program with बिरैक, और उसमें आप अपने स्टार्टअप को ले सकते हैं। तो स्टार्टअप के साथ काम करिए, बिरैक से फंडिंग लीजिए और उसका पेटेंट फाइल करिए, यू विल गेट अ प्राइज। थैंक यू सर। आपने जो आपकी टॉक थी सर, उससे हम लोगों को बहुत लाभान्वित किया, और हमें जो डिफरेंट मोड आपने समझाया कि किस तरह से हम प्रपोजल्स भेज सकते हैं, किस तरह से पेटेंटिंग कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम इसको फॉलो करेंगे सर। और अपनी IIC इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल में सर हम एज एक्सटर्नल मेंबर सर, आप जो हमारा नेक्स्ट ईयर का IIC होगा उसमें हम चाहेंगे सर कि आप हमारे साथ रहें। बिल्कुल आपके साथ। आपके प्रिंसिपल साहब ने कहा बहुत यंग है, डायनेमिक है,
और हम बड़ी श्योर कि आपके यहाँ से कुछ नया आएगा। मैं जब GLA से जुड़ा अभी मथुरा से, तो मतलब वहाँ भी काफी अवेयरनेस है और ये पेटेंट्स खूब फाइल हो रहे हैं। आप GLA की साइट पे जाके देखो, तो अवेयरनेस की कमी है। BHU में रह करके लोग पेटेंट नहीं उतारे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कॉलेज के लोग ना करें कि BHU के लोग या ऐसी इंस्टीट्यूट के लोग, उनको सब लगने लगे कि कॉलेज के लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं। हाँ सर, थैंक यू सर। और सर हमारे IIC की तरफ से सर आपके लिए एक छोटा सा सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन है सर, होप कि आपको पसंद आएगा सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर। आज के कार्यक्रम के हमारे होस्ट अभिमन्यु यादव सर से मैं आग्रह करूंगी कि वोट ऑफ थैंक्स के साथ जो है इस प्रोग्राम को एंड करें। अभिमन्यु सर वीडियो भी ऑन कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर HB सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि सर ने इतना बढ़िया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बताया। एक क्वेश्चन सर मेरा थोड़ा सा लेट हो गया पूछने में, तो सर अगर आप अनुमति दे तो एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है। पूछिए सर, पूछिए। हाँ, एक्चुअली सर एक हमने केम कॉम में पब्लिकेशन केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ सर, हमने एक पेपर पब्लिश किया है हाँ, जिसमें डाईहाइड्रोपाइरिडोन का सिंथेसिस किया है और नए मेथड से किया है सर। ठीक है। लेकिन उसको एक्चुअली हमें PhD की जरूरत थी तो हमने पब्लिश कर दिया, उसको इस पे नहीं डाल पाए। लेकिन उसमें बहुत सारे अभी कंपाउंड हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। कब पब्लिश किया था पेपर को? सर 16 में, 2016 में। नहीं तो नहीं होगा। आजकल क्या है, जैसे अगर आपका पेपर पब्लिश भी हो जाता है, जी सर। दुनिया में एक ही पेटेंट ऑफिस है, US पेटेंट ऑफिस, जो 365 डेज के अंदर आप करते तो पेटेंट मिल जाता आपको 1 साल के अंदर। अब आप वो भी दीवार हो गए हैं। अब जैसे आप सर क्या करिए, सिंथेसिस, अब आप सिंथेसिस का रूट चेंज कर तो आपको नया पेटेंट मिल जाएगा। आप उसमें सिंथेसिस का रूट चेंज कर दीजिए तो आपको पेटेंट अगर सर उसी रूट से हम नए कंपाउंड सिंथेसाइज करें, न्यू कंपाउंड्स, हाँ तो मिल जाएगा जो अभी तक ना रिपोर्टेड हो, जो रिपोर्टेड ना हो, हाँ तो मिल जाएगा। यू विल गेट ए पेटेंट। और आपको एक केमिस्ट्री का ही पेटेंट एग्जामिनर में दे दूंगा, लखनऊ से है। ही विल हेल्प यू इन राइटिंग पेटेंट। ओके सर। हाँ, ही वाज, आपको जानते भी होंगे, ही वाज एन इंडियन पेटेंट एग्जामिनर इन चेन्नई ऑफिस, और वो छोड़ करके अभी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में लेक्चरर केमिस्ट्री है। समझ गए आप? तो मैं उनका कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, डॉक्टर OP सिंह उनका नाम है, और वो बहुत हेल्प करते हैं लोगों की पेटेंट राइटिंग में, पेटेंट फाइलिंग में। केमिस्ट है बाय प्रोफेशन, एग्जामिनर भी रहे 1.5-2 साल। तो आप उनको संपर्क में रहो, आप करो, और उनसे लखनऊ बेस्ड है वो, और सीतापुर में उनकी पोस्टिंग है। आगे पीछे अगर संभव हो तो उनका ट्रांसफर अपने आप कॉलेज में करा दीजिए, तो बहुत सारे पेटेंट करा दीजिए। ठीक है। केमिस्ट्री में पेटेंट बहुत आसान है। सबसे अधिक पेटेंट केमिस्ट्री में ही होते हैं, फिर बायोटेक्नोलॉजी में होते हैं, और फिर अलग अलग विधाओं। बायोटेक्नोलॉजी में मैक्सिमम पेटेंट। थैंक यू सर। अब मैं प्रोग्राम के लास्ट में मैं धन्यवाद ज्ञापन के संदर्भ में सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपने कीमती समय दिया, और इतने बड़े एकेडमिशियन और रिसर्चर के साथ सर आप को पाकर हम लोग बहुत धन्य हैं। और धन्यवाद की कड़ी में डॉक्टर PN डोंगरे सर हमारे प्रिंसिपल हैं, सर ने पूरे फुल टाइम दिया है इस लेक्चर में। जी, सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे फैकल्टी मेंबर, रश्मि मैम और कल्पना मैम का बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिससे ये ऑनलाइन सेशन चल रहा है सर। पिछले 2-3 सेशन हो चुके हैं।
और सभी फैकल्टी मेंबर का सहयोग है, इसलिए सबका धन्यवाद। और लास्ट में मैं सभी प्यारे बच्चों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस सेशन में अपना टाइम दिए, और उन्हें कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। और सबसे ज्यादा तो सर हम ही लोगों को सीखने को मिला है, ये टीचर बेस्ड ज्यादा था। नहीं, जब धन्यवाद कभी हम लोग फिजिकली मिलेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। अभी वर्चुअल मोड में एक तो हमारे यहाँ सिग्नल जो है इतना कि स्लाइड चल ही नहीं रही, सो पुअर, बस खाली चित्र दिख रहा है बस, और कुछ नहीं दिख रहा है। अभिमन्यु सर, आपके आभार की कड़ी में एक आभार मैं भी ज्ञापित करना चाहती हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं राजकीय महाविद्यालय लालगंज की भी छात्र। निश्चित रूप से वहाँ पर सिर्फ यूजी है, लेकिन बच्चे कुछ सीखने की लालसा में आज यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं अपने उन बच्चों का भी हार्दिक आभार ज्ञापित करती हूँ कि आप इसी तरह से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े रहा करिए। निश्चित रूप से कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। चलो रश्मि, थैंक यू। वाइंड अप करो। संडे के दिन